Okay. Bank reconciliation statement. Let's start from the name itself. Let's try to understand the name itself. Bank reconciliation statement. We know statement. We know the meaning of statement. We know the meaning of bank. We know the meaning of bank. We know the meaning of statement. What is the new word for us? Which is the new word for us? Which is the new word for us? Reconciliation. Reconciliation. Reconciliation means explanation. Explanation. Okay. So this is chapter about, in this chapter, what we are going to do? We are going to prepare a statement. We are going to prepare a report which will explain. Let me repeat. We are in this chapter, what we are going to prepare, what we are going to do. We are going to prepare a statement. Statement means a report which will explain the difference between the bank account. Easy definition, one line definition. In this chapter, we are going to prepare a statement which will explain why there is a difference between closing balance of bank account. Okay, I have just explained you the name. Now let's get into the topic. To understand the topic, what exactly we are doing, let me explain you some accounting terms, accounting some concepts. Student, you know, as you know, we prepare lots of accounts in our ledger. In our ledger book, we prepare all those accounts which we use in our business, which we transact it in our business. Business में जो भी हम transaction करते हैं, चाहे वो एक्सपेंस से रिलेटेड हो, चाहे इनकम से रिलेटेड हो, चाहे एसेट से रिलेटेड हो, चाहे लायबिलिटी से रिलेटेड हो, वी प्रिपेयर ऑल दोस अकाउंट्स इन आवर लेजर. हर एक का एक अकाउंट बनाया जाता है. ध्यान से सुनना. इंट्रोडक्शन समझ गए तो टॉपिक इजी. एवरीथिंग इज इन द इंट्रोडक्शन. जितने दिल से इंट्रोडक्शन आप सुनोगे सिंसियरली, टॉपिक उतना आसान हो जाता है. ओके, तो ज्यादा वक्त इंट्रोडक्शन पे देना, ज्यादा दिमाग इंट्रोडक्शन पे लगाना, सॉल्व तो अपने आप हो जाता है टॉपिक. Okay, sums apne aap easily you will be able to solve if you understand the introduction. Introduction is main. Okay, again, during the year in our business, we prepare many accounts related to expense, related to income, related to assets, related to liabilities. Whatever we are doing in the business, those transactions, we have to prepare the accounts. तो कुछ accounts सिर्फ हम ही maintain, हमारी बुक में maintain करते हैं. ठीक है, जैसे कि सैलरी अकाउंट, सैलरी इज एक्सपेंस, सैलरी हम ही अकाउंट मेंटेन करते हैं, हमारे बुक्स में मेंटेन करते हैं. वी मेंटेन सैलरी अकाउंट इन आवर बिजनेस बुक्स, लेजर में मेंटेन करते हैं. कुछ अकाउंट ऐसे होते हैं जो हम भी मेंटेन करते हैं और सेकंड पार्टी भी कोई मेंटेन करता है. मतलब कुछ अकाउंट ऐसे होते हैं which two parties maintain. We maintain as well as some other party, like student, debtor. What is debtor? Customer. Debtors are who? Customers. Who are those customers? Why we call them customer? Because we sell goods on credit. क्योंकि हम goods credit में बेचते हैं. तो debtor हम अपने बुक से मेंटेन करते हैं कि हम उसको कितना माल बेच रहे, how much amount of goods we are selling to that person or party or business. तो we maintain debtor account. तो लेकिन debtor, हमारा जो debtor है जिसको हम उधार में बेच रहे हैं, even he or she or that business also has to maintain. तो उसको भी तो मेंटेन करना पड़ेगा कि हम, उसने हमसे कितना खरीदा. वो हमारे भरोसे पे तो नहीं रह सकता ना कि हम बोले कि तुमने इतना लिया, now pay this amount. Even that party has to maintain how much he or she is purchasing from us. ठीक है, तो कुछ अकाउंट ऐसे होते हैं जो हम भी मेंटेन करते हैं और रिलेटेड पार्टी, कंसर्न पार्टी भी मेंटेन करते हैं. कुछ अकाउंट ऐसे होते हैं जो सिर्फ हम ही मेंटेन करते हैं, लाइक सैलरी अकाउंट, रेंट अकाउंट, लाइट बिल अकाउंट, ये हम ही मेंटेन करते हैं. क्लियर हो गया आपको? उसी तरह से बैंक अकाउंट. Let's take an example. We are having a bank account. A business है तो बैंक अकाउंट हो गई. You have to keep your money in the bank as well as transact money through the bank. Business में जो भी पेमेंट होना है, रिसीव करना है, पेमेंट देना है या पेमेंट रिसीव करना है, you have to do through banking or through bank. You have to use bank. So we open a bank account. Okay, student. तो हमारा हर बिजनेस का बैंक अकाउंट होता है. Do you know which type of bank account we open? There are different types of bank account. सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट. कौन सा बैंक अकाउंट ओपन करते हैं बिजनेस के लिए? इफ यू आर डूइंग बिजनेस देन यू हैव टू ओपन करंट अकाउंट. क्लियर? तो हम करंट अकाउंट ओपन करते हैं. बिजनेस के लिए कौन सा अकाउंट ओपन करते हैं? करंट अकाउंट ओपन करते हैं. ओके, अब ये जो करंट अकाउंट हमने बैंक में ओपन किया, लेट्स टेक एन एग्जांपल. हमने एक्सिस बैंक में ओपन किया. कौन सा बैंक में हमने अपने बिजनेस का करंट अकाउंट ओपन किया है? वी हैव ओपन आवर which current account bank?
इन विच बैंक? एक्सिस बैंक। तो हमारा अकाउंट बिजनेस का करंट अकाउंट है और कौन से बैंक में है? एक्सिस बैंक में। तो इसका मतलब ये है कि वो लोग मेंटेन करेंगे, हम नहीं मेंटेन करेंगे। वी टू मेंटेन द सेम अकाउंट, हम भी एक्सिस बैंक अकाउंट मेंटेन करते हैं इन आवर लेजर, ठीक है। इन आवर लेजर वी आल्सो मेंटेन वन ऑफ द अकाउंट, जैसे बहुत सारे अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं तो बैंक अकाउंट ही मेंटेन करेंगे बाय नेम एक्सिस बैंक अकाउंट, और एक्सिस बैंक भी हमारा अकाउंट मेंटेन करेंगे उनके बुक्स में। गॉट इट? ये इंट्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इंट्रोडक्शन इज एवरीथिंग। इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड टॉपिक तो यही इंट्रोडक्शन में सब कुछ है। ओके, तो हमने एक्सिस बैंक का अकाउंट जो हमारा अकाउंट है वो हमने हमारे लेजर में वन ऑफ द अकाउंट करके मेंटेन कर रहे हैं, जैसे बाकी अकाउंट मेंटेन कर रहे तो एक्सिस बैंक अकाउंट मेंटेन कर रहे, कितना पैसा हमने बैंक में डाला है, कितना हमने विड्रॉ किया है, हाउ मच पेमेंट वी हैव डन थ्रू द बैंक, हाउ मच मनी इज कमिंग इन द बैंक, वी रिकॉर्ड इन आवर अकाउंटिंग डिपार्टमेंट। हम अपने बुक्स में अकाउंट डिपार्टमेंट में वी मेंटेन आवर एक्सिस बैंक अकाउंट। एक्सिस बैंक भी क्या करती है, सिंस वी आर देयर कस्टमर, तो वो भी हमारा अकाउंट मेंटेन करती है। इवन दे मेंटेन आवर अकाउंट, कि हमारे अकाउंट में उनके बैंक में कब पैसा आया, कब पैसा गया, इवन दे मेंटेन आवर अकाउंट फ्रॉम देयर साइड। ओके, तो ये टॉपिक इसी के बारे में। प्रॉब्लम क्या है? व्हाट इज द प्रॉब्लम? प्रॉब्लम क्या होता है? एट द एंड ऑफ द मंथ, आप प्रॉब्लम देखो स्टूडेंट, तभी तो एक्सप्लेन करना है, तभी तो एक्सप्लेन करने के लिए वी हैव टू प्रिपेयर अ स्टेटमेंट। नाउ प्रॉब्लम क्या है? एट द एंड ऑफ द मंथ स्टूडेंट, महीने के आखिर में बैंक क्या करती है? दे गिव अस द स्टेटमेंट। दे डोंट गिव अस स्टेटमेंट एवरी डे। एट द एंड ऑफ द मंथ बैंक प्रोवाइड अस द स्टेटमेंट। महीने भर में हमारा क्या क्या ट्रांजैक्शन हुआ है, दे प्रिपेयर अ स्टेटमेंट एंड दे गिव दैट स्टेटमेंट टू अस। दे सेंड, उसको पासबुक भी कहते हैं। बैंक स्टेटमेंट मींस पासबुक या बैंक स्टेटमेंट, क्लियर? तो वो हमें महीने के आखिर में देते हैं और महीने के आखिर बता दें कि देखो महीने के आखिर में आपके बैंक में इतना पैसा है, दिस इज योर क्लोजिंग बैलेंस। ओके, लेकिन हमने भी तो मेंटेन किया था, हम भी तो बैंक के स्टेट ट्रांजैक्शन हम अपने बुक से मेंटेन कर रहे थे बैंक अकाउंट। लेकिन हमारे हिसाब से क्या होता है कैश बुक में, यू नो कैश बुक में ट्रिपल कॉलम कैश बुक, बैंक कॉलम इन कैश बुक, डू यू रिमेंबर नाउ? ओके, वेरी गुड। तो कैश बुक में क्या होता है स्टूडेंट? अब बैंक कॉलम होता है, तो दैट इज बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट नहीं बनाते हम, कौन सा अकाउंट बनाते हैं? कैश बुक बनाते हैं, जिसमें वन ऑफ द कॉलम इज फॉर व्हाट? डेबिट साइड और क्रेडिट साइड क्या रहता है? बैंक के लिए रहता है। दैट इज द बैंक अकाउंट जो हम मेंटेन कर रहे हैं, व्हिच इज इन द व्हिच बुक? कैश बुक, क्लियर? ओके, तो हमारे कैश बुक में एक कॉलम बैंक का रहता है। तो अभी क्या हो गया प्रॉब्लम क्या होता है? एवरी मंथ एट द एंड ऑफ द मंथ बैंक गिव्स अस पासबुक, दैट इज देयर स्टेटमेंट, देयर साइड स्टेटमेंट, और उसमें जो क्लोजिंग बैलेंस की अमाउंट दिखाता है हमारे अकाउंट में इतना पैसा है, वो मैच नहीं करता। It does not generally 99.9% there is a difference। जो हमने मेंटेन किया था बैंक अकाउंट उसका क्लोजिंग बैलेंस और बैंक ने जो हमारा मेंटेन किया था क्लोजिंग बैलेंस, उसमें डिफरेंस होता है क्लोजिंग बैलेंस। एग्जांपल एक्सिस बैंक क्या बोलेगी? आपका इस मंथ का क्लोजिंग बैलेंस सपोज अप्रैल महीने के आखिर में यू आर हैविंग ओनली 1 लाख इन योर अकाउंट, लेकिन हमारे बुक्स में क्या बता रहा है? 1,40,000 होना चाहिए। हाँ, तो हो सकता है, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, और जनरली होता है एवरी मंथ दिस हैपेंस, हर बार ऐसा होता है। ओके स्टूडेंट, तो एज पर आवर बैंक अकाउंट इन कैश बुक, एज पर आवर क्लोजिंग बैलेंस इन बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, इट इज शोइंग 1,40,000 है, और बैंक क्या बोल रही? नहीं, आपके पास सिर्फ कितना है? 1,40,000, 1 लाख है, तो देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 40,000। तो क्या बैंक ने गलती किया? क्या हमने गलती किया? किसकी मिस्टेक किसकी है? कुछ तो गड़बड़ है, बिकॉज़ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द क्लोजिंग बैलेंस। जब दोनों एक ही अकाउंट है, जब दोनों एक ही चीज मेंटेन कर रहे, एक ही बैंक अकाउंट, बस दो अलग अलग पार्टी मेंटेन कर रहे है, तो एक ही अकाउंट, एक ही बैंक के बारे में चल रहा है, एक ही अकाउंट के बारे में चल रहा है, लेकिन क्योंकि दो अलग पार्टी मेंटेन कर रहे थे, क्लोजिंग बैलेंस में क्या आ रहा है स्टूडेंट? देयर इज अ डिफरेंस। जैसे कि मैंने बताया एग्जांपल के तौर पे, हमारे हिसाब से 1,40,000 हमारे बैंक में होना चाहिए मंथ के एंड में अप्रैल के, और बैंक बोल रही नो, हमारे हिसाब से आपके अकाउंट में कितना होना चाहिए? 1 लाख होना चाहिए। एक एग्जांपल दे रहा हूं, इट द अमाउंट कैन बी इंटरचेंज, वो अलग भी हो सकता है, उधर कुछ ज्यादा हो सकता है या कम हो सकता है, बट देयर इज अ डिफरेंस। तो प्रॉब्लम क्या है? हु हैज डन द मिस्टेक? हुज मिस्टेक इज दिस? बैंक की कि हमारी? ना बैंक की मिस्टेक होती है स्टूडेंट्स,
ना हमारी मिस्टेक होती है। क्लियर हो गया? हो सकता है ना हमने मिस्टेक किया हो सकता है ना बैंक ने मिस्टेक किया। स्टिल देयर इज अ डिफरेंस। तो इसी को समझाने के लिए, यही डिफरेंस को समझाने के लिए क्या देयर इज नो मिस्टेक बट स्टिल देयर इज अ डिफरेंस, बट व्हाट इज द रीजन फॉर डिफरेंस, ये रीजंस को एक्सप्लेन करने के लिए वी प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। दैट्स ऑल। पहले नीड समझ में आ गया? क्लियर? व्हाई देयर इज अ नीड? Because at the end of every month there is a difference between the bank account maintained by two different parties. So by preparing this statement, what we do, we try to explain that difference कि ये difference क्यों आया है, जबकि दोनों एक थे, एक ही अकाउंट के बारे में चल रहा है, तो अमाउंट भी क्लोजिंग क्या होना चाहिए था? सेम होना चाहिए था। I hope till here you all have understood. Clear? Please raise your hand अगर आप if you have understood. थोड़ा मुझे देखने दो, लेट मी चेक। अगर आपको समझ में आ गया है तो प्लीज रेज योर हैंड। फ्यू स्टूडेंट रेज योर हैंड। वेरी गुड, माशाल्लाह, वेरी गुड। फातिमा, आयशा, रौफ, अरबाज, ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। नियरली ऑल आर रेजिंग योर हैंड। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच। तो अभी हम आगे बढ़ सकते हैं। सिंस आई गॉट कंफर्मेशन, थैंक यू स्टूडेंट, आई गॉट कंफर्मेशन फ्रॉम यू। सिंस अभी मुझे कंफर्मेशन मिल गया है आप लोगों से, तो चलो आगे बढ़ते हैं। अभी सवाल ये है, क्वेश्चन ये स्टूडेंट, इफ नो वन हैज डन द मिस्टेक, when no one has done the mistake, ना बैंक अकाउंट बैंक ने गलती की ना हमने गलती की, तो डिफरेंस आ क्यों रहा है? डिफरेंस आ क्यों रहा है? Why there is a difference? अब मैं डिफरेंस समझाता हूं। लेट मी एक्सप्लेन दोस रीजंस, ये why this happens। क्लियर हो गया आपको? अच्छा, तो रीजन क्या है, एक एक करके सुनो स्टूडेंट। कुछ ट्रांजेक्शन हम ऐसा करते हैं फ्रॉम आवर साइड रिलेटेड टू बैंक। देखो, रिलेटेड टू बैंक ही होना चाहिए। अब हम जो बातें डिस्कस करेंगे, जो पॉइंट्स विच वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ, इट इज रिलेटेड टू द बैंक अकाउंट, बाकी चीजें से नहीं। क्लियर हो गया आपको? तो बैंक से रिलेटेड हम कुछ ट्रांजैक्शन ऐसे लिख देते हैं इन आवर साइड ऑफ द बैंक अकाउंट, जो हम मेंटेन कर रहे हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, कुछ ट्रांजैक्शन भी रिकॉर्ड इन आवर साइड ऑफ द बैंक अकाउंट, जो हम मेंटेन कर रहे हैं, वो बैंक ने नहीं लिखा होता है। हम लिख देते हैं एंट्री, लेकिन वो बैंक नहीं लिखती है, बट बाद में लिखती है। दे गॉट डिलेड इन राइटिंग दोस ट्रांजैक्शन। डिलेड, या वो हुआ ही नहीं उनके साइड, तो उन्होंने वो क्यों लिखे? व्हाई दे विल राइट? अच्छा, पहले मैं ये एंगल समझा देता हूं। तो मैंने पहला रीजन क्या बताया? देयर माइट बी फ्यू ट्रांजैक्शन which we have recorded in our book, bank book, but bank has not still recorded those transactions because वहां हुआ नहीं है, उनको पता नहीं चला है, they didn't know about those transactions. So since they didn't know about those transactions, they have not written those transactions in our bank account, passbook उनके साइड, लेकिन हमारे को पता था, we know those transactions, so we have written those transactions. अब let's take an example. ध्यान से सुनना. 5 minutes more I am going to give you introduction and then we will take the first sum. लेकिन everything is in introduction. किसी को introduction समझा तो टॉपिक सिर्फ 2 या 3 दिन में पूरा खत्म हो जाता है. For year, I am talking about for year, not only for revision. Okay? Okay. चलो ध्यान से सुनो. Still I want to give 5-minute introduction and then I will take first sum. Student, तो मैंने क्या बोला? What are the reason for difference? डिफरेंस की वजह क्या होती है? और दोनों साइड, कुछ उन्होंने ट्रांजैक्शन ऐसे लिख दिए जो हमको नहीं पता था, हमने नहीं लिखा. कुछ हमने ट्रांजैक्शन ऐसे कर दिए जो हमने लिख भी दिए लेकिन बैंक को पता नहीं चला अभी तक, तो उन्होंने नहीं लिखा. These are the reasons जिसके वजह से क्या होता है, the difference arise. Clear? अब एग्जाम्पल स्टूडेंट, हमारे साइड कुछ ट्रांजैक्शन के एग्जाम्पल बताता हूं. Suppose we have given a party, a vendor, a creditor from whom we have bought goods on credit. हमने उसको चेक से पेमेंट कर दिया. The party has come to our office. वो पार्टी आया या हमने जाके दिया, कोई भी हो, कोई भी रीजन हो, लेकिन हमने एक पार्टी को, एक वेंडर को, to whom we owe, जिसमें हमें पैसे देना था, because the party has given us goods on credit, हमने उसको चेक दे दिया. क्लियर? हमने उसको चेक दे दिया. किसी को भी जिसको पेमेंट करना था हमने उसको चेक दे दिया. आई एम टेकिंग वन एग्जांपल जस्ट. क्लियर? अच्छा, तो हमने चेक दे दिया. अब चेक कब दिया? मंथ. चलो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ मार्च. लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ, ओके, फरवरी ले लेते, चलो जनवरी ले लेते, एनी मंथ जनवरी लेते. ओके, तो जनवरी के 30th जनवरी को
हाउ मेनी डेज आर देयर इन जनवरी? 31। तो हमने क्या किया, एक पार्टी को 30 तारीख को 30 जनवरी को, अब हम जनवरी का चेक करते हैं. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन क्लोजिंग बैलेंस. अब मैं जनवरी की बात कर रहा हूं, मतलब आई एम गोइंग टू प्रिपेयर अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऑफ जनवरी. Every month you have to prepare this statement. Every month in the account department you have to prepare this statement. So let's take a which month? January month का लेते हैं. क्लियर हो गया आपको? तो जनवरी मंथ में क्या हो रहा है, ऑन 30th ऑफ जनवरी हमने क्या कर दिया, एक पार्टी को जिसे हमें पैसे देने के थे, वी हैव गिवन दैट पार्टी अ चेक. सपोज 10,000 का वी हैव गिवन अ चेक. एक पेमेंट था, वो पार्टी आया या हम पार्टी के बाद चले गए या किसी को भेज दिए, बट वी हैव पेड दैट पार्टी थ्रू चेक. जैसे ही पार्टी को आप चेक देते हो फॉर पेमेंट, हमने चेक दे दिया, कब दिया, डेट इज इंपॉर्टेंट, 30th जैन, और महीने 2 दिन, मंथ खत्म तो होने वाला है जस्ट इन नेक्स्ट डे, 2 डेज में मंथ खत्म होने वाला है. तो हमने मंथ के एंड में एकदम दे दिया. तो जैसे हमने उसको चेक दे दिया, वी हैव टू राइट इन आवर कैश बुक. जैसे 30 तारीख को आपने चेक दे दिया, तो यू हैव टू राइट इन योर कैश बुक. क्या लिखना पड़ेगा, पैसे गए, कहां से गए, कैश बुक में लिखोगे, बट इन विच कॉलम, बैंक कॉलम, क्योंकि आप चेक दे रहे हो तो पैसे कहां से जाएंगे, बैंक से जाएंगे. गए नहीं है लेकिन चेक तो गया है ना, तो आप पहले ही लिख दे. जैसे ही चेक दे दिया आपने, यू रिकॉर्ड दैट ट्रांजैक्शन इन योर बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक. जो बैंक कॉलम बैंक मेंटेन कर रहे हैं आप, बैंक अकाउंट, उसमें लिख देते हो कि पैसे चले गए, मतलब पैसे कब हो गए लिख देते. गॉट द पॉइंट, गॉट द पॉइंट. लेकिन बैंक से गए हैं क्या अभी, बैंक से गए हैं क्या अभी, नहीं. क्यों नहीं गए, अरे जब तक वो पार्टी बैंक में जाके चेक डिपॉजिट नहीं करेगा और विड्रॉ नहीं करेगा, इट माइट टेक 1 or 2 days. ओके, या वो पार्टी अगर डिले करता है चेक प्रेजेंट करने के लिए, तो और भी टाइम लगेगा. लेकिन हमारे साइड से तो हमने दे दिया, अरे हमारे साइड से दे दिया, तो दैट्स व्हाई वी हैव टू रिकॉर्ड आल्सो. भूल जाएंगे तो क्लियर, वी कैन नॉट वेट फॉर द पार्टी कि कब जाएगा और पैसे निकालेगा बैंक से. तो जैसे आपने चेक दे दिया फ्रॉम ऑफिस, यू रिकॉर्ड दैट इन योर कैश बुक. बैंक में पैसे चले, लेकिन बैंक में कम, अच्छा आपके हिसाब से बैंक में क्या हो गया, पैसे बढ़ गए या कम हो गए, कम हो गए, बिकॉज आपने पेमेंट कर दिया. लेकिन क्या एक्चुअल बैंक में कम हुए, नहीं. क्या बैंक गलत कर रहा है, नहीं, उसको पता ही नहीं, उसको पता ही नहीं. तो बैंक कम नहीं करेगी. तो बैंक कम करेगी हमारा स्टेटमेंट में, जब वो पार्टी जिसको हमने चेक दिया था, दैट पार्टी प्रेजेंट द चेक इन आवर बैंक एंड विथड्रॉ दैट अमाउंट. टिल दैट टाइम बैंक में पैसे कम नहीं होंगे. ओके, तो ये मंथ खत्म हो जाता है ना इस दौरान. इन बिटवीन दिस वो ट्रांजिट में होने की वजह से, इन ट्रांजिट होने की वजह से क्या हो जाता है, 31st जन आ गया एंड दैट पार्टी हैज स्टिल नॉट प्रेजेंटेड द चेक. हो सकता है वो पार्टी 5th को प्रेजेंट करे चेक, 5th of February को, लेकिन 31st जैन का जो स्टेटमेंट आएगा, 31st जैन का जो बैंक स्टेटमेंट देगी, उसमें ये चेक होगा क्या, नहीं होगा. तो इसके वजह से क्या होगा स्टूडेंट, इसके वजह से क्या होगा स्टूडेंट, बैंक में पैसे ज्यादा बताएंगे और हमारे हिसाब से बैंक में पैसे क्या हो गए, कम हो गए. दिस इज फर्स्ट फेज. मैं अगेन रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आई हैव टू रिमाइंड यू ऑल, आजू बाजू ध्यान मत देना, आजू बाजू ध्यान मत देना, चाहे वो इन क्लास का एनवायरनमेंट हो, यहाँ चाहे घर का एनवायरनमेंट हो. Just you concentrate on what I am explaining. Okay, be sincere. Very good. Let's again continue. अच्छा तो स्टूडेंट क्या हो गया, तो this was one of the example. तो इस वजह से क्या होता है, there is a difference. तो क्या बैंक में पैसे कभी कम नहीं हो गए, वो 4 दिन बाद हो सकते हैं, लेकिन 31st जैन को तो क्या हो रहा है, there is showing a difference. तो यही चीजें हमें एक्सप्लेन करना होता है. अच्छा, I have just given you one example. Let me give one more example from our side. कि हम कुछ कर देते हैं, we record that in our cash book bank column, but it is not known to, वो नहीं जानते, बैंक नहीं जानते, that's why they don't record those, जिसकी वजह से डिफरेंस आता है. एक एग्जांपल बता दिया. अब देखो दोनों करते, हम भी कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन करते हैं जो बैंक को पता नहीं रहता है, या बैंक ऐसे कुछ ट्रांजैक्शन करती है जो हमें पता नहीं रहता, जिसके वजह से क्लोजिंग बैलेंस में क्या होता है, टेम्पररी डिफरेंस आता है. ओके, अब आगे बढ़ते. नबील, यू आर रेजिंग योर हैंड फॉर व्हाट स्टूडेंट. ओके, आगे बढ़ते. अब और ऐसे क्या चीज है स्टूडेंट जिसके वजह से डिफरेंस आता है हमारे साइड से जो हम ट्रांजैक्शन करते हैं. अच्छा, एक दूसरा एग्जांपल लेते. वन पार्टी हैज गिवन अस चेक. तो एक पार्टी हमें क्या कर रहा है स्टूडेंट, दिस टाइम वी आर नॉट पेइंग,
This time we are not paying. This time we are not paying, but we are receiving a payment. Someone was owing to us. किसी से पैसे आना था. Okay, debtor. Credit. I hope मैंने कुछ mistake नहीं किया. Debtor is the party to whom we sold goods on credit, and creditor is the party from whom we purchase goods on credit. हाँ, तो पेमेंट जो किए थे क्रेडिटर को किए थे. अब हम जो पेमेंट रिसीव कर रहे किससे कर रहे हैं? डेटर से. सपोज डेटर ने हमें चेक दे दिया. किसी डेटर ने हमें क्या कर दिया स्टूडेंट? चेक दे दिया. ओके. अब वो चेक हमने क्या कर दिया? बैंक में जाके डिपॉजिट कर दिए. किसी डेटर ने हमें चेक दिया, पेमेंट किया हमें. अब वो पेमेंट हमने वो चेक क्या कर दी? बैंक में जाके डिपॉजिट कर दी. जैसे हम बैंक में जाके चेक डिपॉजिट करते हैं, हमारी बुक में हम क्या लिख देते हैं कि बैंक में पैसे आ गए. इन आवर कैश बुक हम क्या लिख देते स्टूडेंट? कि वी गॉट मनी इन द बैंक. तो जैसे हम चेक डिपॉजिट करते, किसी का चेक जो हमें मिला है, हम अपने बैंक अकाउंट को क्या कर देते? बढ़ा देते कि पैसे आ गए. क्या बैंक में पैसे आ गए? आए नहीं है. इट टेक्स टाइम. 1 दिन 2 दिन लगते हैं. क्लियर हो गया आपको? तो हमने तो पैसे बढ़ा दिए, तो क्या बैंक में पैसे बढ़ गए? नहीं बढ़े स्टूडेंट. तो ये एक रीजन है कि कभी कभी कुछ ट्रांजैक्शन मंथ के एंड में करते हैं जो विच रिमेन इन ट्रांसिट, वो पूरी कंप्लीट नहीं होते, जिसके वजह से क्या होता है हमारे क्लोजिंग बैलेंस में, और हमने जो बैंक अकाउंट मेंटेन किया है हमारे बुक्स में उसके क्लोजिंग बैलेंस में, और जो बैंक मेंटेन कर रही है पासबुक में उसके क्लोजिंग बैलेंस में क्या होता है हमारे अकाउंट में डिफरेंस आता है. लेकिन अभी मैंने जो एग्जांपल दिया ये सिर्फ मैंने अपने साइड के एग्जांपल दिया कि कुछ ट्रांजैक्शन हमने कर दिए. ज्यादा ट्रांजैक्शन बैंक के होते हैं जो हमें मालूम नहीं रहते. Let me give you few examples of those transactions now which bank does, but we don't know about those transactions. We come to know only when we get the bank statement at the end of the month. कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन के एग्जांपल मैं देता हूं अभी जो बैंक करती है स्टूडेंट हमारे साइड से. क्लियर? जो हमें पता नहीं रहता है. हमें कब पता चलता है? मंथ एंड में जब बैंक स्टेटमेंट देती है तो वी कम टू नो अच्छा ऐसे कुछ बैंक में ट्रांजैक्शन हुए थे. तो फिर बाद में हम अपने बुक्स में बैंक अकाउंट में मेंटेन करते लिखते हो, वी रिकॉर्ड दो ट्रांजैक्शन. लेकिन महीने में तो पता नहीं था. अब ऐसे कुछ ट्रांजैक्शन कौन से हैं? ध्यान से सुनो. few examples I am going to give which bank does and record in our account, but we come to know only at the end of the month. एग्जाम्पल सुनो. अब ऐसे कुछ ट्रांजैक्शन का एग्जाम्पल जो बैंक करती है और हमें पता नहीं रहता है, हमें बाद में मालूम पड़ता है एट द एंड ऑफ द मंथ. एग्जाम्पल बैंक ने कुछ चार्जेस लगा दिए. अच्छा, बैंक ने कुछ चार्जेस लगा दिए तो हमारा अकाउंट बढ़ेगा बैंक में पैसे या कम हो गए. ओके, तो हमने उसको लिखा होगा क्या? नहीं, हम नहीं लिखेंगे. हम कब लिखेंगे? हमें पता ही नहीं. वो बाद में मालूम पड़ता है. कब मालूम पड़ता है हमको? when we get a statement from the bank at the end of the month. तो हमारे हिसाब से पैसे है, लेकिन बैंक क्या करती थी? पैसे कम कर देती है. तो इसकी वजह से मंथ के एंड में क्या होता है? देयर इज अ क्लोजिंग बैलेंस डिफरेंस. एक एग्जांपल मैंने बता दिया. सेकंड एग्जांपल, आप कोई पार्टी क्या करता है? कोई पार्टी क्या करते हैं? दे डायरेक्टली डिपॉजिट द अमाउंट इन आवर बैंक अकाउंट instead of giving to us personally. They directly deposit the amount in the suppose एक डेटर है, कस्टमर है, उसने डायरेक्ट हमारे अकाउंट में पैसे डिपॉजिट कर दिया. व्हाटएवर वो कर रहा था उसने उसका कुछ या पूरा अमाउंट दैट पर्सन हैज डिपॉजिटेड इन आवर बैंक अकाउंट. गॉट इट. अच्छा, तो बैंक में क्या हो गया? पैसे बढ़े या कम हुए? पैसे बढ़ गए. तो क्योंकि पार्टी ने डायरेक्ट बैंक में डिपॉजिट कर दिया तो हमारे बैंक में क्या हो गया? पैसे बढ़ गए. तो हमने बढ़ा हो गया बुक्स में? नहीं, वी डिडंट नो. उसे बता भी दिया होगा तो वी हैव टू वेट फॉर द बैंक स्टेटमेंट. सही में आया है नहीं, तो मंथ के एंड तक हमें रुकना पड़ता है. क्लियर हो गया आपको? एंड देन हम उसकी एंट्री करते हैं आफ्टर लुकिंग एट द बैंक स्टेटमेंट. क्लियर? तो इस वजह से भी क्या होता है? दिस इज वन मोर एग्जांपल. क्या बैंक में पैसे बढ़ गए? हमें पता नहीं था, हमने नहीं बढ़ाए. तो बैंक में हमारे बैंक अकाउंट में हम जो मेंटेन कर रहे हैं उसमें क्या होता है? बैलेंस कम दिखाई देता है. लास्ट एग्जांपल एंड देन वी विल टेक द फर्स्ट सम. ओके, एक एग्जांपल. हमने बैंक को इंस्ट्रक्शन दे के रखा होता है कि ये मेरा लाइट बिल भर दो, ये मेरा कुछ एक्सपेंसेस है इंश्योरेंस का, इस डेट को भर दो. क्लियर? तो बैंक वो क्या कर देते? पैसे कट कर देते हैं ऑन बिहाफ ऑफ अस. बैंक पेज टू इंश्योरेंस कंपनी. ऐसा कुछ इंस्ट्रक्शन हमने दे के रखा है. तो हमने इंस्ट्रक्शन देकर रखा है, इसलिए बैंक क्या करती है? हमारे पैसे कम करके वो जिसको पेमेंट करना कर देती है. लेकिन हमें वो बैंक के स्टेटमेंट रात से मालूम पड़ता है कि ऐसा पेमेंट हुआ था इस डेट को. तो इस वजह से भी क्या होता है? डिफरेंस. ठीक है,
अच्छा एक दो एग्जांपल, यू शुड नो दोस एग्जांपल। अच्छा एक और एक एग्जांपल लेते हैं। अच्छा, इंटरेस्ट बैंक हमको देगी कि लेगी हमसे? बैंक इज नॉट गोइंग टू गिव अस इंटरेस्ट, बिकॉज करंट अकाउंट में इंटरेस्ट होता नहीं। सेविंग अकाउंट में एक बार इंटरेस्ट मिलता है, करंट अकाउंट में इंटरेस्ट नहीं होता है। तो बैंक कट जो अमाउंट करती है, डिडक्ट जो करती है हमारे अकाउंट में, वो बैंक चार्जेस होते हैं, वो इंटरेस्ट के नाम पे होते हैं। इस नाम पे कुछ अमाउंट वो कट करते, दे रिड्यूस अमाउंट फ्रॉम आवर बैंक विच वी लेटर कम टू नो। तो जिसकी वजह से क्या होता है, क्लोजिंग बैलेंस में क्या होता है, डिफरेंस होता है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस इंट्रोडक्शन। एक बार मैं सम अप कर देता हूं इंट्रोडक्शन को, एंड देन वी विल टेक द फर्स्ट सम। हम बना क्या रहे, टॉपिक का नाम क्या है, जस्ट 2 मिनट्स में मैं एक बार आपको रिवाइज करा देता हूं, क्लियर, एंड देन वी विल टेक द फर्स्ट सम। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट मतलब क्या है? वी आर रिकंसिलिएशन मींस एक्सप्लेनेशन। वी आर गोइंग टू प्रिपेयर अ स्टेटमेंट which is going to explain the closing balance difference of our bank account. Bank account is same, but it is maintained by 2 parties. One bank account we maintain, and one account is maintained by our bank. The account is same, तो closing balance भी same आना चाहिए, जब ट्रांजेक्शन वही होते हैं तो, लेकिन नहीं आता। To explain that why there is a difference between closing balance, we prepare a bank reconciliation statement. समझ में आ गया स्टूडेंट? अच्छा, why there is a difference? कि कुछ ट्रांजैक्शन वो लोग करते हैं, बैंक करती है हमारी तरफ से ऑन बिहाफ ऑफ अस, और कुछ ट्रांजैक्शन हम करते हैं, बट सिंस एट द एंड ऑफ द मंथ करते हैं, इट रिमेन्स इन ट्रांजिट, वो इनकम्प्लीट रहते हैं, जिसकी वजह से एक दूसरे को पता नहीं रहता है, तो वो करते नहीं ट्रांजैक्शन। कुछ हमने किया है वो जो इन ट्रांजिट है, जो उन्होंने किया है वो इन ट्रांजिट है, इसलिए हम नहीं करते हैं जब तक हमें मालूम नहीं रहता है, जिसकी वजह से क्लोजिंग बैलेंस में डिफरेंस आता है। और उन्हीं डिफरेंसेस को, उन्हीं रीजंस को वी हैव टू एक्सप्लेन देम एंड प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। आई होप आपको समझ में आ गया। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इट इज इन सीबीएसई आल्सो एज वेल एज स्टेट बोर्ड आल्सो इन 11। ओके, अब तो आप 12th में जा रहे हो, लेकिन वी आर जस्ट डूइंग अ रिवीजन, ओके, बिफोर गेटिंग इनटू 12। अच्छा, वन मोर थिंग, दिस वर्क इज डन इन अकाउंट डिपार्टमेंट एवरी मंथ। हर महीने ये करना ही पड़ता है। Since this has to be done, this statement has to be prepared in account department every month. It is a very important question, hot question in interview. इंटरव्यू में पूछा ही जाता है व्हाट इज बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, और फिर ये सब बातें डिस्कस की जाती है। क्लियर हो गया आपको? अंडरस्टूड इन द इंटरव्यू। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द इंट्रोडक्शन। ओके, नाउ लेट्स गेट इनटू द, एक बार मैं कंफर्म करना चाहूंगा, all of you, have you understood this introduction? Please raise your hand so that I can start the very good, so that I can, very good, all are raising the hand. Okay, so that now I will start the first sum. Let's take in one sum. आज एक sum. Okay student, thank you student, I got confirmation, nearly all students are raising their hand. That's very nice, very good for you student. Okay, now I'm going to take one sum of bank reconciliation statement. Let me share the question first. Okay, this is the sum we are going to take. ये क्वेश्चन पे ध्यान दो, और पहले ही हम वर्चुअली, I am going to solve this on the board. But let's discuss this question first. और क्वेश्चन में ही पूरा समझने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट, और 31 मार्च 2019, जरूरी नहीं ईयर एंड में, हर महीने के आखिर में कोई भी मंथ हो सकता है, नॉट नेसेसरी 31 मार्च ही हो, एनी मंथ। फिलहाल मार्च की बात कर रहे हैं। ऑन 31 मार्च 2019 द कैश बुक ऑफ मिस्टर अरविंद, तो व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोप्राइटर जिसका हमें बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना है? एक बात याद रखना स्टूडेंट, ये जो अरविंद है, ट्रीट क्या हम है, तभी हम अच्छी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। डोंट ट्रीट क्या आप इसके लिए कर रहे हो, ट्रीट क्या है हमारे लिए कर रहे हैं, then we can solve the sum of accounts properly. तो in the books of, इस केस में हम क्या है, अरविंद है, तो in the books of क्या लिखेंगे, मिस्टर अरविंद। अच्छा, बैंक रिकंसिलिएशन की डेट क्या रहेगी, कौन से मंथ एंड का हम बैंक एक्सप्लेन कर रहे हैं, एज ऑन 31 मार्च 2019। शो द बैंक बैलेंस स्टूडेंट। अब वो बैंक किसका बैलेंस दिखा रहे, बैंक बैलेंस, तो बैंक बैलेंस में कितना बता रहे हैं वो, 57,000। अच्छा स्टूडेंट, ये 57,400 जो अमाउंट है, ध्यान से सुनना, अब क्वेश्चन पे ध्यान दो। 57,400 अमाउंट है, ये किस प्रोप्राइटर का है, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोप्राइटर, मिस्टर अरविंद।
कौन से महीने के आखिर की बात कर रहे हैं बैंक बैलेंस? 31 मार्च ईयर 2019। स्टूडेंट्स, और एक सवाल, ये हमारे हिसाब से बैलेंस है एज पर आर कैश बुक बैंक कॉलम और बैंक पासबुक के हिसाब से? बैंक पासबुक मतलब जो बैंक मेंटेन कर रहे हैं और कैश बुक मतलब जो हम मेंटेन कर रहे हैं। तो ये 57,400 किसके हिसाब से? हमारे हिसाब से या बैंक पासबुक के हिसाब से? हमारे हिसाब से। मुझे कैसे पता चला? लिखा है स्टूडेंट, कैश बुक ऑफ अरविंद बैंक बैलेंस कितना बताया? 57,400। तो वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम हियर। हाउ टू सॉल्व, अप्रोच क्या होना चाहिए? तो हम इस यहां से स्टार्ट करेंगे और सब एक्सप्लेन करेंगे और वी हैव टू रीच टू पासबुक का जो बैलेंस है वो वहां पहुंचना पड़ेगा। क्लियर? तो स्टार्ट कहां से होगा? बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। क्लियर? कैश बुक से हम स्टार्ट करेंगे और सॉल्व करके कहां पहुंचना है हमें? जो पासबुक के हिसाब से बैलेंस है ना, वो दिखना चाहिए एट द एंड। तो एजम्पशन क्या करेंगे? अच्छा, इसको अच्छा सॉल्व करने के लिए एक ट्रिक है। इसको अच्छा सॉल्व करने के लिए देयर इज वन ट्रिक। सोचना क्या है, जहां से शुरू किया ना, आप कहां से स्टार्ट कर रहे हो? पासबुक से स्टार्ट करेंगे कैश बुक? मैं रिपीट कर रहा हूं, पासबुक मतलब विच इज मेंटेन बाय बैंक, कैश बुक मतलब विच इज मेंटेन बाय अस। तो हम कहां से शुरू कर रहे हैं? कैश बुक से। तो सोचना ये है, दिस इज द ट्रिक। सोचना ये है कि बैंक में जो है वो सही है और हमें सही करना है। मतलब हमने गलत किया? नहीं स्टूडेंट, हमने भी गलत नहीं किया, लेकिन वी हैव टू ट्रीट दिस, वी हैव टू एज्यूम दिस इज अ ट्रिक जिससे हम सॉल्व करने में आसानी से कर सकते। मैं रिपीट कर रहा हूं, व्हाट इज द ट्रिक? सोचना क्या है कि अगर आपने कैश बुक से स्टार्ट किया है तो सोचना क्या है कि बैंक में जो हुआ है वो सही है और उसके हिसाब से हमें करना है। दिस इज द ट्रिक टू सॉल्व दिस टॉपिक इजीली। ओके, चलो, तो हम कहां से स्टार्ट करेंगे? कैश बुक, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, और सोचेंगे क्या सही है? पासबुक में जो है ट्रांजेक्शन वो सही है। वेरी गुड। अगर इस तरह से जोड़ोगे तो सॉल्व करना इट विल बी वेरी इजी। ओके, बट पासबुक, क्वेश्चन देखो क्या स्टार्ट, और क्वेश्चन में क्या लिखा जरा देखिए, बट पासबुक शोड डिफरेंट बैलेंस। ऑब्वियसली वो बोल रहे कैश बुक के हिसाब से, हमारे हिसाब से तो 57,400 है, लेकिन पासबुक के हिसाब से इट इज शोइंग समथिंग डिफरेंट। तभी तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कर रहे हैं, तभी तो नीड अराइज हुई है। अगर सेम होता तो कर दी क्यों? क्लियर हो गया आपको? तो 57,400 हमारे हिसाब से है, they haven't disclosed that। उन्होंने ये नहीं बताया कि पासबुक के हिसाब से कितना है, हमें पहुंचना है वहां। we have to find that। क्लियर? कुछ प्लस करेंगे, कुछ माइनस करेंगे, सोचेंगे बैंक में जो है सही है, एंड वी विल रीच टू दैट आंसर। क्लियर? तो पहुंचना का क्या कहां है? पासबुक के हिसाब से जो बैलेंस है वहां पहुंचना है। ओके, चलो स्टार्ट कर दे। On comparing the cash book with the passbook, the following discrepancies were noted। What is the meaning of discrepancies? Discrepancy का मतलब होता है differences दिखाई दे रहे जबकि नहीं दिखना चाहिए। Yes, इसका मीनिंग थोड़ा अच्छा है, नहीं तो उन्होंने दूसरा कोई वर्ड यूज किया होता है। Discrepancies का मतलब क्या होता है? It is showing a difference when it should not। Clear? It is showing a difference when they should not show the difference। When it should not show the difference, मतलब डिफरेंस नहीं दिखना चाहिए था। कैसे दिखना? क्योंकि दोनों एक ही मेंटेन कर रहे, एक ही ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, तो फिर बैलेंस भी तो एक ही दिखना चाहिए, लेकिन स्टिल देयर इज अ डिफरेंस। उसको बोलते हैं डिस्क्रिपेंसीज। गॉट द पॉइंट? वेरी गुड। तो कुछ अब उन्होंने फाइंड किया, उन्होंने फाइंड करके क्वेश्चन में दे दिया कि वजह उन्होंने डिफरेंस जो रीजंस दे हैव गिवन इन द क्वेश्चन। तो व्हाट इज द फर्स्ट रीजन? अब देखते हैं आपको आता है कि नहीं। क्लियर हो गया आपको? पहले कुछ चीजें मैं बोर्ड पे करता हूं, एंड अच्छा नहीं तो पूरा कर देते, पहले डिस्कस कर लेते हैं, एंड देन पूरा बोर्ड पे मैं सॉल्व करूंगा। ओके स्टूडेंट? अच्छा, तो एक बार वापस बोल रहा हूं, कहां से शुरू करोगे? पहली लाइन क्या होगी? कैश बुक से स्टार्ट करोगे, बैंक बुक, पासबुक से स्टार्ट करोगे? कैश बुक से स्टार्ट करेंगे, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। और पहुंचना कहां है? बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। सोचना क्या है? वॉट एवर हैज हैपेंड इन द पासबुक बैंक वो सही है और हमें भी वही करना है। वेरी गुड। चलो फर्स्ट एग्जांपल, पहला रीजन फॉर विच इट इज शोइंग द डिफरेंस क्या है? चेक ऑफ रुपीज, ध्यान से देखो, चेक ऑफ रुपीज 6,350, चेक ऑफ रुपीज 6,350। अब ध्यान से सुनो स्टूडेंट, डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट वाज नॉट येट कलेक्टेड बाय बैंक।
क्या हुआ है, क्या हुआ है? देखो स्टूडेंट, हमने चेक डिपॉजिट किया था, हमें पार्टी ने चेक दिया। इसका मीनिंग क्या है? वी हैव रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम अ पार्टी, वी हैव डिपॉजिटेड दैट चेक इन आवर बैंक। लेकिन हम जैसे ही बैंक में डिपॉजिट करते हैं, व्हाट वी डू एट आवर साइड, हम कैश बुक में क्या कर देते हैं? बैंक कॉलम में पैसे बढ़ा देते, वी इंक्रीज द कैश। बैंक में क्या करते थे? हमारे साइड में हम बढ़ा देते, क्योंकि हमने चेक डाल दिया बैंक में। लेकिन इमीडिएटली बैंक में पैसा नहीं आता है, चेक क्लियर करने के लिए टेक्स फ्यू डेज। क्लियर हो गया आपको? तो फिर बैंक में पैसे नहीं आए, लेकिन आपने क्या कर दिया? कैश बुक में क्या कर दिया स्टूडेंट? आपने कैश बुक में बैंक कॉलम में आपने क्या कर दिया? जब चेक डिपॉजिट किया बैंक में, पार्टी से चेक मिला, आपने बैंक में डाल दिया। अब वो बैंक में पैसे आने को टाइम है, लेकिन आपने यहाँ पहले ही क्या कर दिया, जो कि राइट है, ये चेक डाल दिया तो बताना पड़ेगा, यू हैव टू रिकॉर्ड दैट। तो आपने अपने साइड का जो बैंक कॉलम है कैश बुक में, यू हैव इंक्रीज और डिक्रीज, बढ़ा दिया, इंक्रीज कर दिया, पैसे आ गए करके। लेकिन बैंक में नहीं आए। आपको किसकी तरह करना है? आपकी तरह करना है, पासबुक की तरह करना है? रिपीट कर रहा हूं, आपकी तरह करना है, पासबुक की तरह करना है? पासबुक की तरह करना है। सोचा, इसलिए तो बोला था सोच क्या रखना है। दिस इज द ट्रिक, दिस इज द ट्रिक। इसको सॉल्व करने की ट्रिक क्या है? सोचो बैंक में जो वो सही है, अभी करना हमें वैसा पड़ेगा। ओके, तो हम क्या करेंगे? पासबुक में पैसे नहीं आए, हमने खाम का इंक्रीज किया, है ना? पासबुक में पैसे नहीं आए, बैंक ने इंक्रीज नहीं किया, लेकिन हमने इंक्रीज किया। अभी हमें करना किसकी तरह है? पासबुक की तरह। वहां पैसे नहीं आए, हमने पैसे बढ़ा दिए, तो हमें उसकी तरह करने के लिए क्या करना पड़ेगा? काम, वी हैव टू रिड्यूस, वी हैव टू रिड्यूस। मैं रिपीट करता हूं ताकि बाद में इजी हो जाए। देखो स्टूडेंट, वी गॉट अ चेक फ्रॉम अ पार्टी, वी गॉट अ चेक फ्रॉम अ कस्टमर, वी हैव डिपॉजिटेड दैट चेक इन आवर बैंक। As soon as we deposited the check in our bank, what we have done, our side of the bank account जो हम मेंटेन कर रहे हैं कैश बुक में, हमने उसको क्या कर दिया? पैसे आ गए करके we have increased that. But since the bank has not increased the amount yet, because वो क्लियर होने के बाद बैंक क्या करेगी? पैसा इंक्रीज करेगी from their side in our account. लेकिन हमने बढ़ा दिए, लेकिन बैंक वालों ने बढ़ा नहीं दिए। अब रेक्टिफिकेशन और एरर में अप्रोच क्या रखना है? डू एज पर द बैंक। बैंक अगर जो मतलब इस समय अगर आप कैश बुक से स्टार्ट किए तो सही क्या सोचना है? पासबुक में जो है वो सही। तो बैंक ने नहीं बढ़ाया, आपने बढ़ा दिया, तो ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? जो आपने बढ़ा दिया था, आपको क्या करना पड़ेगा? उसको लेस करना पड़ेगा। तो ये माइनस में लिखेगा, याद रखना। यू मस्ट बी नोइंग, आप कर चुके टॉपिक, कुछ प्लस करना पड़ता है, कुछ माइनस। तो ये किस में जाएगा? माइनस में। वेरी गुड। सेकंड पॉइंट, अभी सिर्फ सेकंड पॉइंट पे ध्यान दो। बैंक, अब आप डिसाइड करो, यू डिसाइड दैट, ओके? यू डिसाइड दैट स्टूडेंट। बैंक पेड आवर इलेक्ट्रिसिटी बिल। खुद को आंसर देना। फर्स्ट लिसन दिस, लेट मी एक्सप्लेन एंड देन यू रिप्लाई टू योरसेल्फ, देन यू आंसर टू योरसेल्फ। बैंक पेड आवर इलेक्ट्रिसिटी बिल, बैंक ने हमारे तरफ से इलेक्ट्रिसिटी बिल भरा, हमारे बिहाफ में भरा, हमारे अकाउंट से ही भरा। डोंट गेट मी रॉन्ग हियर, वो हमारे अकाउंट से ही पैसे निकाल के भर रहे हैं, दे आर नॉट पेइंग फ्रॉम देयर ओन पॉकेट। हाँ, लेकिन बैंक पेड आवर इलेक्ट्रिसिटी बिल, हमने इंस्ट्रक्शन करके देके रखा था बैंक को, तो उन्होंने हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया ऑन बिहाफ ऑफ अस। हाउ मच दे हैव पेड? 9700, व्हिच वाज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। अब क्योंकि बैंक ने पैसे भर दिए इलेक्ट्रिसिटी बिल के, वी डोंट नो अबाउट दैट। क्लियर? तो हमने, इसका मतलब बैंक में क्या हुआ? अच्छा, इजी कर देते, लेट्स मेक इट इजी। बैंक हैज पेड ऑन बिहाफ ऑफ अस ऑन आवर इंस्ट्रक्शन आवर इलेक्ट्रिसिटी बिल। तो बैंक में पैसे बढ़ गए या कम हो गए? वेरी गुड, कम। आई एम श्योर आपने यही बोला होगा, पैसे कम हो गए सर, पैसे कम हो गए। कहां कम हो गए? बैंक में। लेकिन हमने कम किए क्या? नहीं, वी डोंट नो एग्जैक्टली कब भरा उन्होंने। जब तक बैंक स्टेटमेंट नहीं आता हम उसकी एंट्री नहीं कर सकते, तो हमें नहीं पता था, हमने नहीं कम किया। तो बैंक में कम हो गए पैसे, लेकिन हमने कम नहीं किया। लेकिन करना किसकी तरह है? यू हैव टू एज्यूम व्हाट, बैंक ने जो किया वो सही सोचना है। इस बार क्लियर हो गया आपको? तो बैंक ने कम किया, मतलब आप भी क्या करोगे? कम, दैट मींस यू हैव टू डिडक्ट, तो ये माइनस में लिखेंगे। तो सेकंड पॉइंट क्लियर हो गया, चलो ठीक है। अब मैं और एक बात समझाता हूं सेकंड पॉइंट, ठीक है? बैंक पेड, देखो सब इंट्रोडक्शन में खत्म होने वाला है। जैसे ही मेरा क्वेश्चन खत्म होगा, मुझे पूरी उम्मीद है 100% स्टूडेंट, ऑल ऑफ यू विल अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग। तो कंसंट्रेशन क्वेश्चन में दो। देखो, इंट्रोडक्शन में ध्यान देना होता है टॉपिक का, और क्वेश्चन में ध्यान देना होता है, आंसर ऑटोमेटिकली बन जाता है। क्लियर? चलो, सेकेंड पॉइंट मैं एक्सप्लेन करता हूं। सोचना है प्लस करना है कि माइनस करना है, और क्या सोच रखना है, एज्यूम क्या करना है, व्हाटएवर हैज हैपेंड इन द बैंक वी हैव टू ट्रीट एज राइट
एंड उसको हिसाब से हमें करना है। ओके, बैंक पेड आवर इलेक्ट्रिसिटी बिल, बैंक ने इलेक्ट्रिसिटी बिल भरा, ओके, ऑन बिहाफ ऑफ अस, दैट मींस दे हैव रिड्यूस अमाउंट फ्रॉम आवर बैंक, ठीक है, लेकिन हमने कम नहीं किया बिकॉज वी डिडंट नो अबाउट दैट, ठीक है, तो हमने कम नहीं किया, लेकिन करना किसकी तरह, बैंक की तरह, उन्होंने कम किया है, मतलब हमें भी क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, दैट मींस आप लेस भी यूज करोगे। तो ये जो पॉइंट्स दिए रीजन, कुछ ऐड में यूज करेंगे और कुछ लेस में, क्लियर। थर्ड पॉइंट, थर्ड रीजन why there is a difference of closing balance between the same bank account maintained by two different parties. Okay, third point क्या स्टूडेंट, अब देखो वापस try to give answer to yourself. Let me explain this first. Check issued to our supplier. Check issued to our supplier. Supplier is the one from whom we have purchased goods on credit. Creditors. तो supplier को हमने चेक दिया, हमें पैसे देना था, we owe to him, तो हमको जो देना था तो हम वो पे कर रहे, हो सकता है पार्टली पे कर रहे, पूरा पे कर रहे, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट ओवर हियर, पे कर रहे, वी आर पेइंग द बाय चेक। तो जैसे हमने सप्लायर को चेक दिया, हमने हमारे बुक्स में क्या किया होगा, हमने हमारे बुक्स में, बिकॉज वी न्यू दिस, वी आर अवेयर ऑफ दिस कि हम चेक दे रहे हैं उसको, जैसे हमने उसको चेक दिया, हमने अपने बुक्स में, कैश बुक में, बैंक कॉलम को क्या कर दिया होगा, पैसे कम कर दिए होंगे। We have reduced the cash from our bank, from our side, in our account. के पैसे गए, लेकिन पैसे बैंक में गए कि एक्चुअली नहीं, कब जाएंगे, जब वो सप्लायर बैंक में जाके पैसे विड्रॉ करेगा, ठीक है। लेकिन आई कंटिन्यू, देखो, was not presented for payment up to 31st March, इस मंथ के आखिर तक उसने चेक डाला ही नहीं, उसने चेक प्रेजेंट किया ही नहीं, तो बैंक में पैसे कम हुए ही नहीं, क्योंकि उसने प्रेजेंट ही नहीं किया चेक, तो why the bank will give to that party? तो बैंक ने ना पैसे दिए उसको, क्योंकि उसने आया ही नहीं लेने के लिए, और ना ही बैंक ने पैसे हमारे कम किए, लेकिन हमने पहले ही क्या कर दिया पैसे, which is right, which is right, ठीक है। as soon as we give the check, हमें पैसे कम करना चाहिए, तो हमने कैश बुक में क्या किया, रिप्लाई स्टूडेंट, गिव द आंसर, क्या किया, गिव द आंसर टू योरसेल्फ, ओके। तो हमने क्या कर दिया, हमने पैसे कम कर दिए, चेक दिया, पैसे कम कर दिए, बैंक में कम हुए क्या, नहीं, करना किसकी तरह है, बैंक की तरह, वहां कम हुए क्या, नहीं, आपने क्या कर दिया, कम, तो वापस क्या करना पड़ेगा, आपको पैसे बढ़ाना पड़ेगा। जस्ट 1 minute, someone is giving answer, I think, let me see, very good, आयशा has given, ऐड करना पड़ेगा। मैं थर्ड पॉइंट वापस डिस्कस करता हूं, एंड देन यू डिसाइड ऐड करना है या माइनस करना पड़ेगा। चेक इशूड टू अ सप्लायर, हमने चेक इशू किया सप्लायर को, एज सुन एज वी गिव द चेक टू द सप्लायर, हमने अपने बुक्स में, कैश बुक में, बैंक कॉलम में क्या कर दिए थे, पैसे कम कर दिए थे, लेकिन उसने अभी तक प्रेजेंट नहीं किया मंथ एंड तक, तो जिसके वजह से क्या हो गया, बैंक में पैसे कम नहीं हुए, हमें बैंक की तरह करना है, वहां पैसे कम नहीं हुए, हमने कम कर दिया, अभी उसकी तरह करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमने खाम का कम कर दिया, वी हैव टू ऐड बैक दैट अमाउंट, क्लियर, तो हम ऐड करेंगे। वेरी गुड आयशा, वेरी गुड, समझ में आ गया, 3 पॉइंट क्लियर। चौथा, इसमें करना क्या, हमें इसको सॉल्व करने के लिए कुछ ऐड डिसाइड करना है, कुछ माइनस डिसाइड करना है, एंड देयर इज अ फॉर्मेट, कुछ ऐड में लिखना पड़ेगा, कुछ माइनस में लिखना पड़ेगा, एंड देन यू विल कम टू द राइट क्लोजिंग बैलेंस एज पर द पास्ट। ओके, स्टार्टिंग फ्रॉम, क्योंकि क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या दिया है, इस क्वेश्चन में उन्होंने दिया है कैश बुक का बैंक बैलेंस दिया था, तो हमें कैश बुक का बैंक बैलेंस के हिसाब से स्टार्ट करना पड़ा, एंड वी हैव टू रीच टू द पासबुक, इसलिए सोचना है कि पासबुक में जो हुआ वही सही। दिस इज अ ट्रिक, दिस इज द assumption, तभी इट इज वेरी इजी टू सॉल्व दिस टॉपिक, this type of questions of bank reconciliation statement। Okay, fourth, अब सिर्फ 3 रह गया स्टूडेंट, 3 रह गए, and then I will solve on the board। Fourth, interest on investment, interest on investment कितना है, 8,000, this is actually, if you are having book student, you can use your book, this is page number 194 in your textbook, page number 194 in your textbook, accounts textbook, bookkeeping textbook. The reason is that it will be better if you are having that book, because when I will solve on the board, you will need that question, okay, or else मैं question वापस लिखते solve करते समय explain कर दूंगा। Okay, now last 3 point, interest on investment, try to understand this, अभी देखो मैं explain करता हूँ, and then you try to give answer to yourself। interest on investment, हमने कहीं इन्वेस्टमेंट किया था, our firm has invested somewhere, we have invested somewhere, कितने का इन्वेस्टमेंट किया था, 8,800 was collected by the bank, तो हमारी बैंक ने, जो हमने इन्वेस्ट किया था उसका जो इंटरेस्ट मिल रहा है, हमारी बैंक ने कलेक्ट करके हमारे अकाउंट में जमा कर दिया, इजी। क्या हुआ है, we have invested somewhere and we got interest,
So our bank has collected our interest from that investment and deposited in our account. तो हमारे बैंक में पैसे बढ़ गए या कम हो गए? इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट मिला, बैंक ने जमा कर दिया, तो इंटरेस्ट क्या हो गया हमारे बैंक में? इंटरेस्ट की वजह से क्या हो गया? We got money in our bank, so amount has increased in our bank. तो बैंक वालों ने पासबुक में हमारे बैंक अकाउंट में क्या कर दिया? इंटरेस्ट की वजह से, इन द नेम ऑफ इंटरेस्ट दे हैव इंक्रीज्ड आवर अमाउंट, आवर बैलेंस. अच्छा, लेकिन हमने इसको नहीं लिखा ही नहीं, was not recorded in the cash book. लेकिन हमने कैश बुक में लिखा ही नहीं. अब क्यों नहीं लिखा? बिकॉज वी डिडंट नो, हमें पता नहीं था. क्लियर हो गया? वो तो हमें मंथ एंड में मालूम पड़ेगा एग्जैक्टली क्या मिला, कब मिला, किस नाम से मिला एट द एंड ऑफ द मंथ व्हेन वी गेट द स्टेटमेंट. इसलिए हमने तब तक नहीं लिखा था. अच्छा, हुआ क्या फिर? इसके वजह से हुआ क्या? बैंक में क्या हुआ? पैसे बढ़े या कम हुए? बैंक में पैसे इंक्रीज हुए. हमने इंक्रीज किया? नहीं किया. करना किसकी तरह है? बैंक की तरह. वहां क्या हुआ? पैसे इंक्रीज हुए. तो हमें भी क्या करना पड़ेगा? पैसे इंक्रीज करना पड़ेगा. आई होप आपने यही आंसर सोचा होगा. ओके, शुड आई रिपीट? क्या सब समझ गए? सब समझ गए स्टूडेंट्स? वेरी गुड. नाउ नेक्स्ट, लास्ट दो पॉइंट, दो रीजन हम डिस्कस करते एंड देन आई विल सॉल्व ऑन द बोर्ड. बैंक चार्जेस. अच्छा, मैं अभी सिंस वी आर हैविंग हाफ आवर मोर, तो आई विल टेक आंसर फ्रॉम योर साइड नाउ. ये फिफ्थ का आंसर मुझे आप मेरे एक्सप्लेनेशन के बाद देना. ओके, चैट बॉक्स में कोशिश करो टू राइट ऐड करना है या लेस करना है. ओके, पहले लेट मी एक्सप्लेन. बैंक चार्जेस ₹650 was debited in passbook. ध्यान से सुनो. अगर अच्छा, हमारा जो बैलेंस होता है बैंक में, वो क्रेडिट होता है कि डेबिट होता है? बैंक हमारे लिए एसेट है कि लायबिलिटी है? हमारा बैंक अकाउंट हमारे लिए एसेट है कि लायबिलिटी है? मेरे पास बैंक में इतना पैसा है, दैट इज फॉर एसेट फॉर मी और लायबिलिटी फॉर मी? एसेट. लेकिन बैंक वालों के लिए मेरा पैसा क्या होता है? माई मनी फॉर बैंक इज व्हाट? लायबिलिटी फॉर देम, बिकॉज दे हैव टू रिटर्न दैट मनी. तो बैंक में वो क्रेडिट बैलेंस रहता है, लायबिलिटी रहता है. तो माई मनी फॉर बैंक इज क्रेडिट बैलेंस, वो लायबिलिटी रहता है उनके लिए. क्रेडिट इज लायबिलिटी, तो लायबिलिटी रहता है. अंडरस्टूड? तो बैंक वाले बता रहे क्रेडिट बैलेंस है, मतलब पैसा मेरे बैंक में है. अगर बैंक बोल रहे कि यू आर हैविंग क्रेडिट बैलेंस दिस मच, 1 लाख क्रेडिट बैलेंस है, मतलब दे आर टेलिंग मेरे अकाउंट में इतना पैसा है. तो उनके लिए वो क्रेडिट होता है. समझ में आ गया स्टूडेंट? वेरी गुड. हाँ, तो अगर वो डेबिट करते हैं, देखो क्रेडिट को क्रेडिट किया तो पैसे बढ़ेंगे. बैंक में मेरा पैसा क्या होता है? उनके लिए क्रेडिट होता है. तो क्रेडिट को क्रेडिट करने का मतलब क्या होता है? इंक्रीज होता है. लेकिन क्रेडिट को डेबिट करने का मतलब क्या हो गया? डिक्रीज हो गया. तो ये डेबिटेड का मतलब बोलने का मतलब क्या है? बैंक हैज रिड्यूस माय बैलेंस, बैंक हैज रिड्यूस माय अमाउंट बाय हाउ मच? 650. बाय व्हाट नेम? बैंक चार्जेस. तो बैंक ने कुछ बैंक चार्जेस मेरे से कट किया अमाउंट. दे हैव डिडक्टेड सम अमाउंट इन द नेम ऑफ व्हाट? बैंक चार्जेस. हाउ मच अमाउंट? 650. बैंक ने डेबिट किया, क्रेडिट किया? डेबिट किया. मेरे अकाउंट में डेबिट किया, मतलब बैंक में पैसे बढ़ गए, कम हो गए? कम हो गए, क्योंकि क्रेडिट बैलेंस रहता है. डेबिट किया मतलब अपोजिट किया, मतलब दे हैव रिड्यूस्ड दैट. तो इन शॉर्ट, इन इजी लैंग्वेज, बैंक हैज डिडक्टेड some amount, that is 650, from my balance in the name of bank charges they have taken from me. तो इससे हुआ क्या? बैंक में क्या हो गए? बोलिए स्टूडेंट, बैंक में क्या हो गए? पैसे कम हो गए. लेकिन हमने कम किया क्या? वी डिडंट न्यू, हमें पता नहीं था. तो हमने कम किया कि नहीं किया? बैंक वालों ने कम किया, हमने कम नहीं किया. रिपीट कर रहा हूं, बैंक ने कम किया, हमने कम नहीं किया. करना किसकी तरह है? बैंक की तरह. तो वहां कम हुए, मतलब हमें क्या करना पड़ेगा? Let me see the answer now. Yes, how many students have given the answer? Very good. Abdul Rahman, less. Alfia, less. Insha, less. Aisha, less. Tasmia, less. Very good. All are correct. Less. Very good. Less जरूर कर रहे हो, लेकिन आप सब more हो रहे हो, add हो रहे हो. Good. Your knowledge is getting added. Very good. Not knowledge, you are already good student. Clarity is getting more added now. Okay. Now, last, and then we will solve on the board. Last point. Let's see this. अब ये देखते हैं, इसको आप समझते हो क्या? Mr. Tanmay, our debtor. So Tanmay is a customer, is our debtor. Directly deposited rupees what? 12,000. तो तन्मय ने क्या किया? पैसे
डायरेक्ट हमारे बैंक में डिपॉजिट किया. I have given this example. I have given this example in the introduction. So one of our customer, in this case, the name of that customer is Tanmay. So Tanmay, what our customer has done, कि उसने पैसा instead of giving to us, that customer by name Tanmay has directly deposited the amount in our account. बैंक में डायरेक्टली डाल दिया. कब डाल दिया उसने? 28 मार्च को. नियरली महीना खत्म हो गया था. ठीक है, तो एकदम 2 दिन पहले डाल दिया, 2-3 दिन पहले, which was not entered in the cash book. हमने नहीं लिखा उसको. क्यों नहीं लिखा? हमें पता ही नहीं था. उसने डाल दिया लास्ट के 2 दिन, वो कंप्लीट हुआ नहीं ट्रांजैक्शन. वो ट्रांजैक्शन अभी इन ट्रांजिट है, अभी 1-2 दिन लगेगा वो, या फिर वो स्टेटमेंट के बाद हमें पता चलेगा. दैट माइट बी द रीजन. ठीक है, तो किसी वजह से हमें पता नहीं होने की वजह से वी डिडंट रिकॉर्ड इट इन द कैश बुक. अभी मालूम पड़ रहा है महीना खत्म होने का, वी गॉट अ स्टेटमेंट फ्रॉम द बैंक, पासबुक मिल गया, तो अभी मालूम पड़ रहा है कि ऐसे किसी कस्टमर ने डायरेक्टली डाल दिया था. तो हुआ क्या? व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इट? इफेक्ट ये हुआ कि बैंक बैलेंस हमारा क्या हो गया? बैंक में पैसे इंक्रीज हुए, डिक्रीज हुए? इंक्रीज हुए. लेकिन हमने वो लिखा नहीं, हमें पता नहीं था, तो हमारे कैश में इंक्रीज हुए कि नहीं हुए? नहीं हुए. हमने रिकॉर्ड नहीं किया, हमें पता नहीं था, तो कैश बुक में पैसे नहीं बढ़े, लेकिन बैंक बुक में, पासबुक में पैसे बढ़ गए. अब करना किसकी तरह है? व्हाट इज राइट? वी हैव टू एज्यूम कि बैंक ने जो किया वो सही है, तो बैंक में पैसे बढ़ गए, तो हमें भी कैश बुक में क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा. दैट मींस क्या करना पड़ेगा? आई एम श्योर यू ऑल नो द आंसर. ऐड करना पड़ेगा. ऐड करना पड़ेगा. That's all. That's all. Let me see what you have given the answer in the chat box. Student, very good. सब लोग सही आंसर दे रहे. That's very nice. Very nice, student. Very very good, all of you. चलो चलो आगे बढ़ते student. Now let's solve this on the board. Now let's solve this on the board. हाँ, तो मैं अभी बोर्ड पे आता हूँ student. Let's see on the board. Let's solve this sum. Same sum we will solve on the board. अब बोर्ड पे हम इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स. Just few seconds student. I'm trying to connect. Okay, very good. I hope you are able to see this now board. I hope you are able to see the board now. Okay student, now let's solve the same sum. उसी sum को हम इसको solve करते हैं. Let's see how to solve this sum. इसको किस तरह draw करते हैं, and what are the things we have to consider while solving this sum. Please raise your hand if you are able to see me as well as the board. I want to confirm from you. Very good. You are very quick. Very good. I got the confirmation student. So you are able to see the board as well as me. Okay. Thank you for the confirmation student. Now, how to solve this? What to draw and how to solve this? First, in the books of student. In the books of क्या लिखोगे? The name of the proprietor. इस समय proprietor का नाम क्या था? Mr. Arvind. तो in the books of क्या रहेगा student यहाँ? In the books of, just one minute. In the books of Mr. Arvind. Second heading, bank reconciliation statement. Bank reconciliation statement as on. For which month ending you are preparing the report? Every month, for every month, you have to prepare this bank reconciliation statement. But in this sum, what is the month they have given? कौन से महीने का बना रहे हम लोग? 31st March 2019. 31st March 2019. Very good. So in this way, you have to write first in the books of name of the proprietor, then bank reconciliation statement as on whatever they have given the month and date in your question. Particulars, inner column and outer column. Inner, that's why I have drawn this column from little down. From down I have drawn this, and write in the outer column amount and rupees symbol. That is the currency is in rupees. Of 12 lines, 12 to 14 lines you need this. 12 से 14 line का 14 lines का you have to draw this bank reconciliation statement. अच्छा, now what is the first line? How to solve this? What is the way to write in this? This is not the account. This is not the account. So यहाँ debit, credit, to, buy ये सब नहीं आएगा. This is a report जिसमें हमें explain करना है. But somewhere we have to start with. दो चीजें explain करना है हमें. दो बैंक के balances है. Bank account तो एक ही है. When it says two different parties are maintaining this same bank account, तो किसी एक से start करना है. Since they have given in the question कि cash book के हिसाब से ऐसा दिखा रहा है, तो we have to start from cash book. So what is the first line? First line student, bank
बैलेंस एज पर कैश बुक। स्टूडेंट्स थोड़ा एडजस्ट कीजिए दिस बोर्ड। In 2 days we will bring a wide big board because of the lockdown. I was not able to adjust that big white board. तो एक दो दिन इस छोटा सा बोर्ड है, तो we have to adjust on this board. Okay, तो first thing क्या है? बैंक बैलेंस as per cash book. कितना था in the question student? 57,000. That you have to write in the outer column. 57,400. From here we have to start. Okay, तो बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। तो जब बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक क्वेश्चन में दिया है तो सोचना क्या है, पासबुक में जो हुआ है व्हाट इज द टेक्निक, व्हाट इज द ट्रिक कि देखो दिस इज द ट्रिक जिससे आपके सम्स इजी हो जाएंगे, इजीली कर पाएंगे विदाउट एनी कंफ्यूजन। ओके, तो सोचना क्या है, जो कैश बुक एज बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक से स्टार्ट किया तो जो पासबुक में हुआ है वही सही समझ के आपको सॉल्व करना है। ओके, उसके नीचे फ्यू रीजंस वी विल ऐड and few reasons we will subtract less। तो कुछ ऐड करने पड़ेंगे इसके अंदर और कुछ लेस करने पड़ेंगे। तो हमने तो डिस्कस ऑलरेडी किया है, लेकिन कोई बात नहीं, एक पहला सम अच्छी तरह से करोगे तो बाकी के सम ऑटोमेटिकली और इजी हो जाएंगे। लेट्स डिस्कस द फर्स्ट रीजन। इस बार देखो, चेक ऑफ ₹6,350। if you are not having the book with you, please concentrate what I am reading. Check of ₹6,350 deposited into the bank but was not yet collected by the bank। चेक हमने डिपॉजिट किया था बैंक में, लेकिन अभी तक कलेक्ट बैंक ने नहीं किया। ठीक है, क्योंकि लेट किया होगा, मंथ एंड में किया होगा तो बैंक को वक्त ही नहीं मिला डिपॉजिट करने के लिए, 31 मार्च आ गया। तो हमने चेक डिपॉजिट किया बैंक में, कहीं से चेक मिला था हमें, हमने बैंक में चेक डिपॉजिट किया, बट वो ट्रांजिट में है, अभी तक बैंक ने उसको कलेक्ट किया नहीं। हुआ क्या नतीजा, हमने कैश बुक में पैसे बढ़ा दिया, लेकिन बैंक में बढ़े नहीं। अब बैंक में नहीं बढ़े, बैंक की तरह करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, लेस। तो यहां लिखेगा स्टूडेंट, यहाँ क्या लिखेगा, चेक डिपॉजिटेड, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, डिपॉजिटेड नॉट येट कलेक्टेड। छोटा बोर्ड इज लिटिल स्मॉल, दैट्स व्हाई आई एम एडजस्टिंग दिस, आई एम राइटिंग इन अ वेरी शॉर्ट लाइन सेंटेंस। चेक डिपॉजिटेड नॉट येट कलेक्टेड बाय बैंक। कितनी अमाउंट है, अमाउंट कितनी है, 6,350। इनर में लिखो, पहले सारे ऐड सारे लेस इनर में लिखो एंड देन वी विल टेक दोस टोटल टू द आउटर कॉलम। ओके, सेकंड पॉइंट, बैंक पेड आवर इलेक्ट्रिसिटी बिल। याद आ गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल बैंक ने पे किया ऑन आवर बिहाफ, तो दे हैव रिड्यूस्ड द बैंक बैलेंस। हमारा अमाउंट में क्या किया उन्होंने, कम कर दिया, दे हैव रिड्यूस्ड द अमाउंट फ्रॉम आवर बैंक। तो पैसे बैंक में कम हुए इलेक्ट्रिसिटी बिल के नाम पे, लेकिन हमने कम नहीं किया, लेकिन बैंक की तरह करना है तो हमें भी कम करना पड़ेगा। अगेन कहां आएगा, ऐड में कि लेस में, लेस व्हाट, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड बाय बैंक। तो बैंक में कम हो गए, लेकिन हमने कम नहीं किया, हमें बैंक की तरह करना है तो हमें भी कम करना पड़ेगा। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल, 9,700। ओके, 2 पॉइंट समझ में आ गया। थर्ड, टोटल 6 रीजंस आर देयर। थर्ड, व्हाट वाज द थर्ड रीजन स्टूडेंट, चेक इशूड टू आवर सप्लायर। हमने सप्लायर को चेक दिया, हुआ क्या, उसने प्रेजेंट नहीं किया, उस आदमी ने, उस सप्लायर ने अभी तक प्रेजेंट नहीं किया, लेकिन व्हेन वी इशूड द चेक हमने क्या कर दिया था स्टूडेंट, वी हैव रिड्यूस आवर कैश बुक। हमने बता दिया बैंक से पैसे गए, जैसे ही चेक दिया हमने बोला पैसे गए, लेकिन स्टिल दैट चेक हैज नॉट बीन प्रेजेंटेड बाय द सप्लायर। तो बैंक में पैसे नहीं गए, हमने खाम का कम कर दिया, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अभी ऐड करना पड़ेगा। रिपीट कर रहा हूं, वी हैव गिवन टू अ सप्लायर चेक, as soon as we have given the supplier the check, what we have done, we have deducted the amount from the bank। तो हमने अपने कैश में बता दिया कि पैसे चले गए, लेकिन since that supplier had not yet presented the check to the bank, वहां वो बैंक में से पैसे कम नहीं हुए हैं। अब बैंक में कम नहीं हुए, हमने खाम का कम कर दिया, इट इज राइट एक्चुअली, लेकिन सोचना ऐसा है। क्लियर हो गया आपको, तो हमें वापस ऐड करना पड़ेगा। तो इस बार ये कहां आएगा, अंडर द हेडिंग, अंडर किस में आएगा, ऐड में आएगा। चेक issued but not presented। check issued, we have issued the check but उस पार्टी ने प्रेजेंट नहीं किया। what is the amount student, 15,100।
समझ में आ गया? तो इस तरह कुछ ऐड में लिखेंगे, कुछ लेस में लिखेंगे। मैंने अभी तक आई हैव डिस्कस 3 पॉइंट्स, 3 मोर आर रिमेनिंग। लेट्स कंप्लीट दिस सम। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, आई होप यू आपको याद आ गया व्हाट वी हैव डिस्कस। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट याद है आपको? क्या याद है स्टूडेंट? कि आवर बैंक हैज कलेक्टेड इंटरेस्ट on our investment and credited our account, और हमारे अकाउंट में हमने उसने जमा कर लिया। तो बैंक में पैसे क्या हो गए? मनी हैज इंक्रीज्ड इन द नेम ऑफ इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। तो बैंक में पैसे बढ़ गए, लेकिन हमें पता नहीं था तो हमने बढ़ाया नहीं, तो कैश में पैसे नहीं इंक्रीज हुए, बट इट हैज इंक्रीज इन अ बैंक पासबुक। तो अब पासबुक की तरह करना, वहां पैसे बढ़ गए तो हमें भी क्या करना पड़ेगा? हमारे कैश बुक में ऐड, दिस इज द कैश बुक, हमें उसको भी क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। तो सेकंड ऐड में लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक कितना? व्हाट इज द अमाउंट? इफ यू आर हैविंग क्वेश्चन 8,800, इस तरह से उसको मैं रिपीट कर रहा हूं। बैंक has collected interest on our investment, we have done somewhere in investment, तो बैंक ने हमारे तरफ से इंटरेस्ट कलेक्ट किया और हमारे अकाउंट को क्रेडिट किया। क्रेडिट को क्रेडिट किया मतलब दे हैव इंक्रीज द अमाउंट इन आवर बैंक। तो हमें पता नहीं था, तो कैश बुक नहीं बढ़ा, बैंक बुक बढ़ गया, पासबुक। तो पासबुक की तरह करने के लिए यहाँ भी कैश बुक को क्या करना पड़ेगा? कैश बुक बैलेंस को वी हैव टू इंक्रीज। Okay, very good student. So already we have covered 4 reasons. This is the way we have to write to solve the sum. 2 more reasons are there. Bank charges ₹650 was debited in passbook. Bank charges ₹650 was debited in the passbook. So bank has charged us for some reason. कुछ हमने सर्विस लिया होगा, कुछ सर्विसेज लिए होंगे बैंक से, तो उसके वजह से they have charged the amount. तो बैंक has debited. बैंक ने हमारे अकाउंट को डेबिट किया, मतलब पैसे इंक्रीज किए या डिक्रीज किए? ऑलरेडी क्रेडिट रहता है, क्रेडिट को डेबिट करने का मतलब क्या होता है? उन्होंने डिक्रीज किए, तो बैंक वालों ने कम कर दिए हमारे अकाउंट में पैसे। तो बैंक में कम हुआ है, हमें पता नहीं था तो हमने कम नहीं किया, लेकिन बैंक में पैसे कम हुए तो यहाँ भी पैसे कम करना पड़ेगा। दैट मींस वेयर आई हैव टू राइट लेस, अंडर लेस। बैंक चार्जेस डेबिटेड by bank. What is the amount? 650. 650. Clear हो गया आपको? 650. Now last point. Last reason. Because of what? There is a closing difference in the closing balance of the bank account. Same bank account maintained by 2 different parties. One by us and one by bank. What is the last point? Last reason. Mr. Tanmay are debtor directly deposited. Okay, you must have याद आ गया होगा आप लोगों को। तो वन ऑफ आवर कस्टमर जिसका नाम है तन्मय, उसने डायरेक्टली बैंक में डिपॉजिट कर दिया 12,000, जिससे क्या हुआ स्टूडेंट? बैंक में पैसे बढ़ गए और वी हैव नॉट रिकॉर्डेड दैट ट्रांजैक्शन इन आवर कैश बुक। तो बैंक में बढ़ गए, हमने नहीं बढ़ाए थे, तो हमें बैंक की तरह करना पड़ेगा, मतलब वी टू हैव टू इंक्रीज। तो कहां लिखेंगे? ऐड में। डायरेक्ट डिपॉजिटेड by customer. How much? What is the amount? जो डायरेक्ट डिपॉजिट किया है 12,000 students. So whatever the reasons they have given in the question, we have covered all those reasons. तो कुछ लेस में आ गया, कुछ ऐड में आ गया। अब इसकी टोटल करेंगे। ऐड की टोटल ऑल्टरनेट करेंगे, लेस की टोटल भी ऑल्टरनेट करेंगे। फर्स्ट add all the which are coming under the add. Total कितना होता है? काउंट ऐड कीजिए स्टूडेंट। 15,100 plus 8,800 and 12,000. It comes to 35,900. ठीक है? इस तरह से फिर लाइन ड्रॉ करो। तो जितने भी ऐड है, you add that in the closing balance of the cash book, bank balance as per cash book, उसमें ऐड करेंगे। It comes to 93,300. Now less में जितने भी आपने whatever reasons you have written under the heading under the less, add the total of the less. Okay, तो 3 है उसमें amount, add that, it comes to 16,700. I hope you are able to see the board.
till the last 16,700. तो add की total हो गई थी 93,300 और less की total हो गई थी 16,700. Now total add में से you have to deduct this 16,700. It comes to nearly what? 76,600. 76,600. From where we have started bank balance as per cash book. अब finally जो आया उसको क्या लिखेंगे? Since it is coming in plus only, तो क्या लिखोगे? Bank balance as per pass book. That's all. समझ में आ गया? That's all. एक बार वापस बता देता हूँ. Question में they have given bank balance as per cash book. So we have started from that amount. Bank balance as per cash book. फिर यहाँ कुछ add जो हमने reasons discuss किए उसको understand किए and according to our understanding कुछ add में आ गया कुछ less में आ गया फिर वो सब total करके हम क्या किए add के total outer में less के total outer में finally जो difference आ रहा है we started with the positive number वो positive number ही आ रहा है लेकिन ये कहाँ पहुंच गए हम लोग bank balance as per passbook. So this is a bank reconciliation statement. Here we have drawn a statement to explain why there was a difference between two closing balances of the same account. Okay, and explanation. This is the explanation. This is the explanation we have given in middle. Okay, so this is the bank reconciliation statement. I hope you have understood this. So let's go back to the desktop main screen. Okay, student. I hope you have understood this first. Sum of bank reconciliation. In fact, you have understood the entire this lecture, which was on bank reconciliation statement. I have given you introduction as well as I have teach you how to solve the first sum. I will appreciate if you will raise your hand and tell me whether you have understood or not. Those students who have understood, please raise your virtual hand. Very, very, very good. Excellent. I am very happy that you all have understood whatever I have taught you today as a revision. That's very nice.